Hello, everyone. Good morning and namaste. A very warm welcome to all of you on this special student wellness webinar organized by our team at BRIA in collaboration with Institute of Excellence in Management Science. My name is Karishma Washne and I'm your host for the today's yoga and wellness session. Before we begin, I would like to take a moment to thank the people who made this session possible. A big thank you to Dr. Virana DK for believing in the importance of student health and wellness and for giving us the opportunity to work together through this partnership. We truly grateful for your support, sir. So can I please request everyone to give a big round of applause to Dr. Virana? I hope everyone can hear me. Hello. Yes, ma'am. Is everyone can hear me? So can I please request everyone to give a big round of applause to Dr. Virana? Can everyone just clap for him? Hello. Yes, ma'am. Is everyone can hear you, Doctor? Like hear me, Dr. Virana? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are audible. Okay, so can you ask everyone to give a just round applause for you? Yes, ma'am. They are there. Okay, thank you, Dr. Virana. Thank you for this wonderful opportunity. And a special thanks to Dr. Preeti who helped us at every stage while planning and staffing this webinar. We really appreciate your time and efforts. Thank you, Dr. Preeti, for your time and support. Now, let me tell you a little about what today's session about. So, our wonderful health coach, Miss Meeta, will be leading this session, and she will take to you about how yoga can help you stay healthy, both physically and mentally, especially during the student life, which can get really hectic and stressful at some time. So the best part is you don't need a yoga mat or a big space. Meeta will show you easy breathing exercises like pranayam and some simple activities you can do while sitting. Even during your study breaks, she will also guide you with some mantras that can help calm your mind and improve your focus. We believe taking care of your health is just important as your studies, and today we want to help you to do just that in a simple and effective way. Before we begin this session, I would like to take a moment to introduce the amazing team members from BRIA who are working on the entire student wellness program. So Mr. Ali Bhaskar, our IT professional who ensure all the technical aspects of the program. So please, Ali. Hi, very good morning. Hello. Thank you, Ali, for joining this session and make this session so effective and vulnerable. Thank you, Ali. And Thank you, I'm sir. gonna thanks Miss Jigisha Bhatt, our operational in charge, who keep everything organized behind the screens. So please come, Jigisha, on screen. Hi, good morning. Thank you, Jigisha, for joining this session and make things organized like always. Thank you, Jigisha. Okay. So, thank you again for joining us. Let's all take this time to relax, breathe, and learn something useful for our minds and bodies. So, I'll hand it to Miss Meeta Bharadwaj to start this session. Let's all give a warm and round applause to welcome Miss Meeta Bharadwaj. Meeta, please come and join the session and take this. Thank you, Meeta. International Yoga Day is a first step to keep understand about your lifestyle and health. एक दिन के अंदर हम लोग सब कुछ नहीं सीख सकते, ठीक है, सब कुछ नहीं समझ सकते, बट ये बिगिनिंग है अंडरस्टैंड करने की why our health is so important, why this yoga international day is made by, कि हम इसे क्यों इम्पोर्टेंस दें. आप सब जानते हैं कि लाइफस्टाइल में हम लोग पे बहुत सारे प्रेशर्स हैं. काम का प्रेशर, स्टडीज का प्रेशर, करियर का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर. उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए आपके शरीर को सब कुछ झेलना पड़ता है. आपकी बॉडी कॉम्प्रोमाइज करती है उन सब चीजों के साथ साथ जो आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर
चीजें करते रहते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो सब कुछ इम्पैक्ट आता है आपकी लाइफ पे। ओके, बट उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें हेल्दी रहना क्यों है। क्या खाली योगा से ही हेल्दी रह सकते हैं? क्या करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए? आई थिंक सो मेरे से ज्यादा आप लोग जानते होंगे, आजकल सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारा ज्ञान है, ठीक है ना? बट हम उसे फॉलो करते हैं? कितना फॉलो कर पाते हैं, और क्यों फॉलो नहीं कर पाते, क्या क्या रीजंस आते हैं, आज इस सेशन के अंदर हम वो जानेंगे। क्या क्या ड्रॉबैक्स आते हैं, क्या क्या बैरियर्स आते हैं कि जो हम अपनी हेल्थ में, क्योंकि मोटिवेशन तो बहुत जल्दी आता है मगर वो मोटिवेशन का बबल बहुत जल्दी फूट भी जाता है। तो हेल्दी रहने के लिए आपकी बॉडी को फिट रहना, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना, टाइम पे सोना, ये सब है, सबको पता है, मगर करते नहीं है। ज्ञान आजकल बहुत उपलब्ध है, नॉलेज, जानकारी और विजडम यानी कि ज्ञान के अंदर यही डिफरेंस है। जानकारी सबको है, मगर क्या उसे अडॉप्ट करके हम यूज कर पाते हैं? बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं, टाइम नहीं मिलता, स्टडी प्रेशर्स हैं, मेरा सर्कल ऐसा नहीं है, कोई कंपनी अच्छी नहीं लगती है। तो इस वजह से क्या होता है, ना तो आप वर्कआउट पे जा सकते हैं, ना कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर पाते हैं। मैं जरूरी ये नहीं कहती कि आप योगा कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, मगर एक स्टेप आगे बढ़ाइए तो सही। आपको जिम जाना है, जिम जाइए, पिलाटे करना है, पिलाटे कीजिए, जुम्बा करनी है, एरोबिक्स करना है, कोई गेम खेलना है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। बट अपने लिए पूरे दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर अपने लिए 45 मिनट्स निकालना सीखिए, इस शरीर के लिए। भगवान ने खुद हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मेरी भक्ति से पहले तुम्हें अपने शरीर का ध्यान रखना है। अगर ये शरीर ठीक होगा तभी आप सारी चीज अचीव कर पाते हो, वेदर योर स्टडीज, करियर, योर गोल्स, योर फैमिली केयरिंग, अपने परिवार का ध्यान रख सकते हो, मगर उसके लिए पहले अपने आप को, जिसको कहते हैं हम भक्ति कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, सारे अच्छे काम करने के लिए पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। तो बॉडी की हेल्थ को मेंटेन रखना आज की डेट में बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो गए। आई थिंक सो यू गाइस आर वेरी अवेयर कि खाना आजकल कितना ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स होने लगा, अनहेल्दी चीजें खाते हैं, लाइफस्टाइल ऐसा होते, पीयर प्रेशर हो जाता है, फ्रेंड्स का प्रेशर हो जाता है, हम ना चाहते भी सोशल में रह करके वो चीजें करने लग जाते हैं जो हमें पता होते हैं कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। वी कंज्यूम दोज थिंग्स। इफ आई टेक द नेम्स, वी स्टार्ट यूजिंग एल्कोहल, वी स्टार्ट यूजिंग स्मोकिंग, पीयर प्रेशर में आकर के, सबको पता है गलत है, मगर क्यों करते हैं? अरे मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बोला था, इट्स लुक कूल। वो कूल दिखने की जो चाह हो जाती है ना, वो कब आदत में कन्वर्ट हो जाती है, मैं खुद को समझ में नहीं आता। ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में कीजिए, हर चीज लिमिटेशंस में अच्छी लगती है, बट साथ ही साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखिए ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। आप बैक्टीरिया, वायरल, छोटे मोटे जो चेंजेस आते हैं वेदर के अंदर और तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, उससे रिकवर हो पाए अपने आप ही। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, वो सब आपको आपके वर्कआउट से धीरे धीरे मिलने लग जाता है। आपकी बॉडी, आपके लंग्स, आपका स्टेमिना, ब्रीदिंग कैपेसिटी सब इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हमारा वर्कआउट करना इम्पोर्टेंट है। शारीरिक सुख मिलता है, बॉडी हेल्दी रहती है, फ्लेक्सिबल मिलती है, आराम से जमीन पे बैठ पाते हैं, राइट, वॉक कर पाते हैं, भाग पाते हैं, घुटनों में दर्द नहीं होता। आज मोबाइल घंटों देखने की वजह से सर्वाइकल होने लग जाता है, जो आज की डेट में बहुत नॉर्मल है। आप तो स्टूडेंट्स हैं, आपको घंटों पढ़ाई करनी पड़ती होगी, 8 घंटे, 12 घंटे, समटाइम्स लेट नाइट्स ऑल्सो, देन यू हैव अ सर्वाइकल पेन। हमारे हार्मोन्स, हमारी जो सेल्स होते हैं वो ऑटो मोड पे रीजनरेट होते रहते हैं, ठीक है, आप सबने जाना पता होगा इतना। यंग एज के अंदर हम जो गलत भी करेंगे ना, तो बॉडी हमारी इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि सेल्स बन रहे होते हैं, बन रहे हैं खत्म हो रहे हैं, बन रहे हैं खत्म हो रहे हैं। तो क्या होता है, बॉडी मैनेज कर जाती है। प्रॉब्लम आती है आफ्टर 30, 35, 35 की एज के बाद ये प्रॉब्लम्स आपको नजर आने लग जाती है। सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, बैक पेन और न जाने कौन कौन सी बीमारियां। डायबिटीज, थायराइड तो नॉर्मल है आज की डेट में, है ना, हर घर में कोई ना कोई डायबिटीज का पेशेंट, थायराइड का पेशेंट मिल जाता है। क्यों? ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने ध्यान नहीं रखा, मगर जो एज ध्यान रखने की थी, दैट इज योर एज।
अगर इस एज में हम अपना ध्यान रखना सीख गए तो पूरी लाइफ के लिए आपके लिए लेसन हो जाएगा। वो लाइफस्टाइल यानी कि डिसिप्लिन में आ जाएगा आप। और लाइफ मोटिवेशन और डिसिप्लिन में यही एक अंतर है। मोटिवेशन इज अ बबल, अभी रहेगा, हफ्ते भर बाद खत्म हो जाएगा, 1 महीने चल जाएगा, 2 महीने चल जाएगा, अरे यार मजा नहीं आया, विल ट्राई समथिंग एल्स। डिसिप्लिन अभी स्टार्ट करा है, आगे तक जाएगा। अब इसमें बैरियर्स क्या क्या आते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते, मेरी नींद पूरी नहीं होती, मेरे पास बहुत प्रेशर है, स्टडीज करनी पड़ती हैं, यार फ्रेंड सर्कल में सपोर्ट ही नहीं मिलता। तो ये सारे हमारे रीजंस होते हैं ना कर पाने। अपने लिए समय निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पहले ये समझना पड़ेगा हमें। 24 घंटे सबके लिए हैं पूरे दिन के अंदर, मेरे लिए, आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, और जो फिट रहते हैं उनके लिए भी 24 घंटे। तो क्या होता है, हम जिस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, आप उसके लिए टाइम निकालना सीख जाते हैं। तो पहले इम्पोर्टेंस देखना सीखना पड़ता है कि हम उस चीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मोमोज खाने हैं, अनहेल्दी खाना है, फास्ट फूड खाना है, मगर आप रोज की आदत तो नहीं बनाएंगे ना, कभी कभार ही खाएंगे, चलो बॉडी डाइजेस्ट हो जाएगी, नेक्स्ट डे उसे रिकवर कर लेंगे। दैट इज ऑल्सो साइंस की बॉडी हर चीज को, जब भगवान शिव हलाहल विष को सहन कर पाए, हमें तो छोटे मोटे बैक्टीरियाज और प्रिजर्वेटिव्स को ही बैलेंस करना सीखना है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके। ठीक है, हमें उस लेवल पे नहीं जाना, तो उतने में ही हो जाएगा तो हमारी जिंदगी बिना बीमारियों के हम अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। वी आर ग्लैड कि हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे कॉलेज आज की डेट में हमारी हेल्थ को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो समझते हैं कि वाई दिस इम्पोर्टेंट, योग ही क्यों, बिकॉज इट्स नॉट फिजिकली हेल्दी। योग एक खाली आसन नहीं है, मैं आपको बता दूं, खाली मैं आपको कलाबाजी करा करके या फिर शरीर को तोड़ के मरोड़ के, दैट इज नॉट योग। ये तो मेरे हमसे ज्यादा बेटर कोई जिम्नास्टिक वाला कर लेगा। योग इज ऑल अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल, जीने की कला है। कब सोना है, कब जागना है, कब उठना है, कितना खाना खाना है, कितना पानी पीना है, सब कुछ हमारे योग में सिखाया गया। तो बॉडी के साथ साथ जब हम बॉडी का ध्यान रखते हैं तो माइंड का भी ध्यान रखा जाता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो क्या होता है, टेंशन नहीं आती, डिप्रेशन नहीं आता है, एंजाइटी फील नहीं होती, प्रेशर फील नहीं होता। तो अपने आप ही बॉडी बैलेंस होना सीख रही होती है उसके अंदर। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस बट इट हैपन्स व्हेन वी इफेक्ट ऑन अ बॉडी। बॉडी इज अ बैलेंस, आपका स्टमक खुश है, बॉडी खुश है, तो आपका माइंड भी हैप्पी रहेगा, आप भी खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे। इफ द स्टमक इज अनहेल्दी, बॉडी इज अनहेल्दी, कहीं पेन है, यार मेरे को मूड स्विंग्स हो रहे हैं, प्लीज आज कुछ मत, आज मेरे को इरिटेशन हो रही है, प्लीज मत बोलो, दैट इज हैपेंस व्हेन बॉडी इज नॉट हैप्पी, माइंड इज नॉट हैप्पी। पहले खुद को खुश रखो, तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। ठीक है, इस सेशन के अंदर आज हम आपके लिए जो नॉर्मल में काम आने वाले हैं वर्कआउट्स वो जानेंगे केयर के हिसाब से, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं। मेजरली क्या होता है, वर्कआउट करने का इतना वो नहीं मिलता टाइम, तो आप चेयर पे बैठे बैठे भी थोड़ा बहुत वर्कआउट जर्नली कर पाए जो आपके जॉइंट्स को एक्टिव रखे, आपको हेल्प करता रहे। तो आज हम वो सीखेंगे। चलिए, रिलैक्स योरसेल्फ ऑन द चेयर। Spine straight, relax your neck, hands straight. चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल। मैं आप सबको देख नहीं पा रही हूँ बट मैं अज्यूम कर रही हूँ यू आर गाइस आर सीरियस एंड यू जॉइनिंग द, ठीक है। मेरे को मोटिवेशन मिलता है अगर आपके स्क्रीन ऑन होते हैं, आई कैन सी यू गाइस, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स अपॉन योर कंफर्ट लेवल। कंफर्ट बहुत जरूरी है, खुशी आनी चाहिए, एंजॉय होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। चलिए, रिलैक्स। प्रॉब्लम क्या आती है, मेजरली सर्वाइकल्स के अंदर आती है, जॉइंट्स के अंदर आती है, ट्विस्टिंग में, कमर में आती है, बैक पेन होने लग जाता है बैठे बैठे, पैरों में प्रॉब्लम आती है। तो हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज से ये जानेंगे कि आप इसको कभी भी कर सकते हैं। स्टडी करते करते आप थक गए हैं, पेन हो रहा है, थोड़ा सा हिलाया गर्दन, आप कौन एक्सरसाइजेस के हिसाब से आप उनको कर सकते हो तो बेटर रहेगा। चलिए, रिलैक्स योरसेल्फ, स्पाइन स्ट्रेट, लुक इट अप, पूरा चिन ऊपर जाएगा,
एक्सेल डाउन, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। कीप डूइंग इट, आई विल काउंट फॉर यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax, center, change. 1 2, अपने शोल्डर के पीछे देखने की कोशिश करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स, साइड टू साइड। अपने ईयर को टच करने की कोशिश करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर मत करना, जस्ट जेंटली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Now rotate your neck 360 degree. One clockwise, another anti-clock. 2 3 4 5 6 7 8 9 and last 10. Relax. Close your fingers. अपने हेड के पीछे। Now exhale करते हुए inward, inhale करते हुए outward and look at up. ऊपर सीलिंग की तरफ देखेंगे। Inward, outward. 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax yourself. Deep inhale and exhale. पॉज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्कआउट से दूसरे वर्कआउट के बीच, एक काम से दूसरे काम के बीच, एक सब्जेक्ट से पढ़ाई से जंप करके दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई के बीच में छोटा सा ब्रेक, माइंड को, बॉडी को रिलैक्स कर। ओके, नाउ लिफ्ट योर लेग अप। 1 हाफ। दिन भर चेयर पे बैठे बैठे। 2 3 4, you guys are young, so I can hope you can do both together. 3 4 5 6 7 8 9 and last 10. It helps to activate your thigh muscles, hamstring muscles, जो ओपन अप करने में हेल्प करता है। अगेन लिफ्ट योर लेग अप। चेयर पे थोड़ा सा आगे होके बैठे। 1 हैंड हियर, अप एंड डाउन। 1, स्पाइन को सीधा रखते हुए अगर आप यहीं तक जा पा रहे हैं तो यहीं तक जाएंगे, फिर वापस, जबरदस्ती नहीं करनी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hands down, relax. पैर को ये रहने देंगे। Keep your legs safe. Now, legs straight है। अपनी चेयर के हैंडल को होल्ड करा, जिस साइड पे लेग्स है उसी साइड पे ट्विस्ट करा
और पूरा पीछे तक, जितना पीछे आप जा पाओ। होल्ड फॉर 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly back. Relax. If you feel side muscles में stretch आया आपको, ठीक है, तो that will help you out to improve your metabolism, जिसको हम हिंदी में जठराग्नि बोलते हैं। आपकी स्टमक की अग्नि को इम्प्रूव करता है, जठराग्नि को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। बस इसको खाना खाने के तुरंत बाद मत खाना, खाना खाने के और इस एक्सरसाइज में गैप 3 आवर्स का होना चाहिए। ये खाना डाइजेस्ट हो चुका हो, आप ट्विस्टिंग कर पाओ आराम से, ठीक है। अदर साइड, लेग अप, हैंड्स अप एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. 10 seconds break. Now twist. Hold your chair sides and twist backward. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. धीरे से वापस रिलैक्स। नाउ दीज आर दोज एक्सरसाइजेस जो आप अपने रूम में चेयर पे बैठ के आराम से कर सकते हो। स्टडी ब्रेक लिया, बॉडी स्टिफ लग रही है, उसको फ्लेक्सिबल करने के लिए दिन में 2-3 बार आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके जॉइंट एक्टिव रहेंगे, तो आपको बॉडी पेन नहीं होगा लेटर ऑन, ठीक है। नेक्स्ट, inhale, exhale, relax yourself. Inhale, exhale. Okay, if you guys can communicate with me, अगर आप अनम्यूट करके बोल पाए तो आप प्लीज ये बता पाएंगे कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमें जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए। ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट है, पानी इंपॉर्टेंट है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर व्हाट फॉर बॉडी इज ब्रेथ, हमारी सांसें। बिना सांसों के जीवन नहीं है। शुरू से लेकर के अंत तक जब तक हम जीते हैं, कहते हैं ना, गिन के सांसें लेकर आए हैं। कछुआ 200 साल तक जीता है, बेचारा कुत्ता 12 साल के अंदर ही चला जाता है। ब्रीदिंग पैटर्न्स, कछुआ दिन के अंदर 6 से 7 ब्रेथ लेता है, 6 to 7 ब्रेथ। उसकी ब्रीदिंग पैटर्न लंबे होते हैं, तो ही लिव लॉन्गर। हम कुत्ता छोटी सांस लेता है, जल्दी जल्दी हाफता रहेगा, जल्दी जल्दी सांसें जा रही है। सो विल इट्स विद ह्यूमंस ऑल्सो। हम अपनी सांसों के, जो आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में ना, हम लोग अपने सांसों लेने का पैटर्न ही भूल गए हैं। आजकल वो शायद आपने इंस्टाग्राम पे, वो सोशल मीडिया पे वो मीम देखा होगा, बताओ मुझे तभी तक सांसें लेनी नहीं आती थी, योगा में बता रहे हैं मैं सांस लेनी भी गलत कर रही हूँ। तो दैट इज ट्रू, क्योंकि जब मैंने पहली बार सीखा था मुझे भी वो शौक हुआ था, अरे मैं अभी तक सांस भी गलत ले रही थी। इसलिए तो आज हम छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। हम चेक करते हैं कि हम ढंग से, सही तरह से, जैसे प्रकृति ने, मदर नेचर ने हमें बनाया, हम वैसे सांस लेते हैं या नहीं लेते। कीप योर लेफ्ट हैंड ऑन योर स्टमक, आईज क्लोज, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है
कि इनहेल करते हुए आपका स्टमक अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, एक्सहेल करते हुए स्टमक बाहर जा रहा है या अंदर जा रहा है. कीप ब्रीदिंग. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. होप यू गाइस कैन ऑन द कैमरा और बता पाते कि कितनों का अंदर जा रहा है. आपने इन सांस अंदर ली, मेरा पेट भी अंदर जा रहा है सांस लेते हुए. जा रहा है किसी का? Yes, ma'am. अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है. ओके, और किस किसका जा रहा है? ठीक है, चलिए, जिसका भी जा रहा है. ठीक है. मैं आपने सांस ली, बैलून में हवा भरी, तो पेट फूलना चाहिए, बाहर आना चाहिए. जब इनहेल करोगे तो स्टमक बाहर आएगा, एक्सहेल करोगे तो पेट अंदर जाएगा. आपने बैलून में से हवा निकाल ली तो पेट अंदर गया. इनहेल किया, एयर भरी, पेट बाहर आया. दैट्स द राइट पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग. ये एक सही तरीका है सांस लेने का. अब ये गलत कैसे हो गया? मदर नेचर ने तो मुझे सही बनाया था. ठीक है. क्यों? आजकल हम जो भी काम करते हैं जल्दी 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 भागदौड़ में रहता है. ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है. तो जल्दी जल्दी के अंदर क्या होता है, हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न्स को भी भूल जाते हैं. अनकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है और सब कॉन्शियस माइंड के साथ कोऑर्डिनेशन ना करते हुए हमारी ब्रीदिंग पैटर्न को मिक्स कर देता है. ठीक है. अब इससे प्रॉब्लम क्या है? ब्रेथ, सांस तो ले ही रही हूँ ना मैं. प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है, आपकी सांसें छोटी हो जाती हैं. ठीक है. हमारी सांसें, ब्रीदिंग पैटर्न हमारा छोटा होता चला जाएगा. आप चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हो. सांसें 3 लेवल्स में होती है, चेस्ट ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग एंड बेली ब्रीदिंग. ठीक है. क्या होता है? चेस्ट ब्रीदिंग जब होगी, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी. ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन कम मिल रही है, ऑर्गन्स अपना काम अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे. लेटर ऑन, लंबे समय में जाने के बाद वही ऑर्गन धीरे धीरे खराब होने लग जाएंगे. आपको डायबिटीज होने लग जाएगी, थायराइड होने लग जाएंगे, बीपी हाई होगा और ना जाने क्या क्या. तो क्या होता है? सिर्फ सांसें डिसाइड कर रही होती है कि फ्यूचर में कौन सी बीमारी आएंगी आपको. अभी तो यंग है और सेल्स अच्छे हैं, हार्मोन्स अच्छे हैं, तो सब कुछ बैलेंस हो रहा है, पता भी नहीं चल रहा. जैसे 30-35 जाएगा, अरे यार मेरे को थायराइड भी हो गया. तो थायराइड का एक दिन में हो जाता है, डायबिटीज एक दिन में हो जाती है. इन बीमारियों को होने के लिए सालों लगते हैं. तो हमें अपनी ब्रीदिंग पैटर्न सुधारनी होती है. आपको एक दिन में नहीं सुधरेगी. आपको जब भी याद आए दिन के अंदर, टीवी देखते हुए, खाली बैठे हुए, बात करते हुए, अपनी कैपेसिटी को, अपनी सांसों को पूरा पेट तक भरा और खाली किया. 5, 10, 15 बार, जितना आपका मन करे. आप देखोगे जैसे जैसे आप करोगे, आपका मन भी शांत होता चला जाएगा, माइंड भी रिलैक्स होता चला जाएगा और आप उस पैटर्न को एंजॉय कर पाओगे. हफ्ते महीने महीने भर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. उसके बाद धीरे धीरे आपका अनकॉन्शियस माइंड प्रिपेयर हो जाएगा. तो क्या करेंगे आप? ऑटोमेटिकली आपका ब्रीदिंग पैटर्न सुधरने लग जाएगा. आप यू विल स्टार्ट टेकिंग अ डीप ब्रेथ्स. काम करते हुए भी, चलते हुए भी आपकी ऑटोमेटिक ब्रीदिंग पैटर्न इंक्रीज हो जाएगा. यू विल स्टार्ट टेकिंग अ डीप ब्रेथ्स. तो सांसें ही सब कुछ डिसाइड करती हैं. आपको बीमारी होगी या नहीं होगी, आपका नेचर बिहेवियर कैसा होगा. जो इंसान जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता होगा जैसे, ठीक है, और शॉर्ट टेम्पर्ड होगा या फिर खाना इंडाइजेशन रहता होगा, आप देखना उसकी सांसें हमेशा छोटी होंगी. वो जल्दी जल्दी सांसें लेता होगा. मुश्किल 1 या 2 सेकंड्स में काम खत्म. इनहेल एक्सेलेशन, इनहेल एक्सेलेशन चलता रहेगा. तो क्या होता है? इसका प्रभाव हमारे मन पे भी पड़ रहा होता है. तो चलिए, ज्यादा ज्ञान ना देते हुए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं. हम अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं. आप मेरे काउंट के साथ इनहेल करेंगे, मेरे काउंट के साथ एक्सहेल करेंगे. इससे आपको अपनी लंग्स कैपेसिटी भी इंक्रीज समझ में आएगी कि मुझे मेहनत करनी पड़ रही है 7 सेकंड के लिए इनहेल करते हुए. 7 सेकंड के एक्सहेलेशन तो हो जाता है आराम से. इनहेल करते हुए मेरे लंग्स को इतनी मेहनत करनी पड़ी है कि मैं थक जाता हूँ जल्दी. तो यही होता है आपका स्टेमिना कम होने का. चलिए, रिलैक्स योरसेल्फ ऑन द चेयर, स्पाइन स्ट्रेट, आईज क्लोज. मेरे काउंट के साथ स्टार्ट करेंगे इनहेल और 7 सेकंड तक इनहेल रहेगा, फिर 7 सेकंड तक एक्सहेल रहेगा. रिलैक्स, ब्रेथ बिल्कुल नॉर्मल एंड स्टार्ट इनहेल. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax yourself. ध्यान आपका आपकी सांसों पे, आंखें बंद. ब्रेथ को बिल्कुल नॉर्मल होते हुए महसूस करेंगे. मन शांत. और एक इन केस अगर सांसें नॉर्मल है, धीरे से आईज ओपन कर सकते हैं. this is yoga. Director wants me to join. Yoga session. Most welcome to you. Yes, it's a breathing pattern exercises like a pranayam, you can say. It's just the beginning to understand the capacity of our lungs, how long we can breathe and exhale. So, this much. Okay. Glad to see you, sir. Okay. Next, that's a breathing capacity. And I don't know कि कितने लोगों को लगा हो क्या बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है इनहेल करने के लिए. अब किसी के साथ ऐसा हुआ था या कंफर्टेबल था सबको? No, inhaling was comfortable, madam. Exhaling was not happened after the 7 seconds. Okay. Okay. Exhalation. So that's the sign of your lungs. अच्छा, आपको याद है कि 2019-20 में कोविड जो आया था, सबसे ज्यादा उसने प्रहार कहाँ किया था? हमारे लंग्स पे. इफेक्ट्स ऑन आवर लंग्स. तो तभी कहा था ना कि प्राणायाम चालू करो, योगा चालू करो. तब हम सबको योगा की याद आई थी. मैं भी उनमें से एक थी. तभी मुझे योगा की याद आई. तो दैट इज द पावर ऑफ योगा कि आपको कि बॉडी की इम्यून सिस्टम को, इट्स अ साइन. वी आर यंग. हमारे लंग्स में भी इतनी कैपेसिटी नहीं है हम 7 सेकंड तक इनहेल कर पाए, 7 सेकंड एक्सहेल कर पाए. कैसे इंक्रीज करेंगे? छोटे छोटे गोल्स बनाकर. एकदम से बहुत बड़े बड़े गोल्स नहीं बनाना. ब्रीदिंग कैपेसिटी एक दिन में इंक्रीज नहीं होती, रोज प्रैक्टिस चाहिए. मैंने कहा ना 45 मिनट्स अपने लिए निकालना शरीर के लिए. क्योंकि अगर मैं चीजें रियलाइज कराने पे आऊंगी ना, कहेंगे हाय मेरे को इतनी सारी बीमारियां. नहीं, कोई बीमारी नहीं है आपको. ये बीमारी होने की स्टार्टिंग है. जैसे मोटापा कोई बीमारी नहीं है, ओबेसिटी कोई बीमारी नहीं है. इट्स द बिगिनिंग ऑफ योर साइकिल कि अब बीमारियां आएंगी शरीर के अंदर. सेम विद अस कि हमारी लंग्स कैपेसिटी कम है, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो आगे बीमारियां आ सकती हैं. तो हमें ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ानी है अपनी बॉडी की. कैसे? आप कार्डियो करते हो, दैट इज ऑल्सो हेल्प यू. एरोबिक्स करते हो, दैट इज ऑल्सो हेल्प यू. योगा कर रहे हो, वेरी गुड. प्राणायाम कर रहे हो तो बहुत अच्छा. ठीक है. तो ये सब एक्सरसाइज एक्टिविटीज आपके लंग्स को, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में हेल्प करती है. डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट.
आपको जो अच्छा लगता है वो करो, जबरदस्ती नहीं है कि योगा ही करना है। आई अंडरस्टैंड कि यंग सिचुएशन के अंदर आपको योगा बोरिंग लगता होगा, इट्स वेरी स्लो, बट मेरी मानिए, आप सेशन ज्वाइन करके देखिए मेरे साथ में, 1 हफ्ते कीजिए, पता चलेगा आपको व्हाट इज द मैजिक इज ऑल अबाउट। बॉडी का ट्रांसफॉर्म होता है, इट्स नॉट अबाउट फिजिकली, मेंटली भी ऑल्सो। आपकी लाइफस्टाइल बैलेंस होने लग जाती है, नींद टाइम से आएगी, जल्दी आराम से खुल जाएगी, स्लीपिंग साइकिल बैलेंस होने लग जाएगा, रात को मन ही नहीं करेगा कि यार नहीं इतनी देर मोबाइल देख के क्या करना है, छोड़ना, सबको पता है। तो लाइफस्टाइल बैलेंस होने, सोशल बैलेंस होने लग जाता है आपका, अपने दूसरों मित्र से व्यवहार, फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन बेटर होने लग जाते हैं। आपको जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, इरिटेट नहीं होगी। यू नेवर नो किस इंसान के साथ क्या प्रॉब्लम है, तो आप उसको समझने लगोगे। मे बी ही इज लोनली, उसका मूड खराब होगा, उसका किसी से झगड़ा हो गया होगा, आप कंसोल करना सीख जाओगे, सामने वाले के दर्द को अपना समझोगे, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में आप फैमिली से दूर हो सब, तो आप लोगों को एक दूसरे का ही सहारा है, तो आप एक दूसरे को समझोगे, ओवर वेलकम होंगे, तभी बैलेंस बिठा पाओगे। तो दैट्स द बेस्ट थिंग जो आपको हेल्प करेगा। आपके पहले खुद तो स्वस्थ रहो, तभी तो दूसरों को हेल्प कर पाओगे। नाउ अंडरस्टैंड द मेडिटेशन। मेडिटेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, ठीक है। मेडिटेशन हिंदी में अगर देखा जाए, ध्यान, ध्यान कुड बी एनीथिंग। मैं ध्यान से बहुत काम कर रहा हूँ, मैं ध्यान से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं ध्यान लगा के टीवी देख रहा हूँ, ठीक है, मैं मेरा सारा फोकस का सब ध्यान सारा का मोबाइल में है, मेरी पिक्चर में है, मेरे मुंह में, तो ध्यान है। मगर मेडिटेशन का मतलब तो वो भी है कि ध्यान, तो वो भी है कि जो हम बैठ के ऐसे मन ही मन पता नहीं क्या करते रहते हैं, दैट इज ऑल्सो ध्यान। इसको हम हिंदी के वर्ड्स के साथ समझते हैं, व्हाट इज ध्यान। योगा, अभी आपने प्राणायाम किया, ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सलेशन, अपनी कॉन्शियसनेस को आपने एक्टिवेट किया, तो दैट इज अ प्राणायाम, इट्स काइंड ऑफ एक्सरसाइज। नाउ ध्यान, प्राणायाम पहली सीढ़ी है ध्यान पे जाने के लिए, ध्यान तो चौथी पांचवी सीढ़ी है। पहला सीढ़ी है ध्यान, जब ब्रेथ को नॉर्मल कर लेंगे हम, अपने सांसों को नियंत्रित करना चालू कर देंगे तो ब्रेथ, तो ध्यान भी धीरे धीरे लगता है। ध्यान के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार अपनी इंद्रियों पे यानी कि सेंसेस पे कंट्रोल होना, अपने सेंसेस पे, बाहर क्या हो रहा है मुझे मतलब नहीं है, मेरा ध्यान मेरी पढ़ाई में है, कोई क्या कर रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा ध्यान मेरी पढ़ाई में है। सो दैट इज ऑल्सो दैट्स अ कंट्रोल ऑफ सेंसेस। तो प्रत्याहार आपको यहाँ हेल्प करता है, ठीक। देन आता है धारणा, अपनी कॉन्शियसनेस को इतना एक्टिवेट कर लेना, साथ में क्या हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर कहीं पेन हो रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। इतना ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो आप अपनी चीजों को लेकर के। कई होता है ना कई बार कि बीमार है, फीवर है, तभी एग्जाम देने जाना है, मजबूरी है, मगर कई की विल पावर ऐसी होती है कि नहीं यार मुझे फील नहीं हो रहा, मैं दे लूंगी, मेरा स्पोर्ट्स गेम है आज, मेरा स्पोर्ट्स का टाइम है, सो वी विल डू इट, आई विल डू इट। दैट इज ऑल्सो दैट्स धारणा। आपकी विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप उसको, बॉडी नहीं साथ दे रही तभी आप कर रहे हो और अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज धारणा। उसके बाद आता है ध्यान, अपने कॉन्शियसनेस में। ध्यान इज अ काइंड ऑफ वर्ड कि आप सब कुछ भूल चुके हैं, आसपास क्या हो रहा है वो भूल जाना ध्यान है। तो मैं नहीं चाहती कि अभी आप ध्यान वाली स्टेज में जाओ, दैट इज वेरी लॉन्ग, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम अभी प्रत्याहार ही करेंगे, वही बेटर। प्रत्याहार क्या होता है, हम आसपास के सराउंडिंग्स को या तो कितनी एक ही जगह पे पॉइंट पे ध्यान लगाएं, या तो अपनी सांसों पे लगाना या फिर साउंड पे लगाना, जो मैं चलाने वाली हूँ साउंड, ठीक है। अगर आपको उच्चारण करना हो तो दैट्स अ मंत्र ऑफ ओम। ओम 3 शब्दों से मिलके बना है, अ, उ और म। इसकी वाइब्रेशंस आपके, अगर आप चैंट करोगे, आपके स्टमक में आएगी, चेस्ट पे आएगी और फॉरहेड पे आएगी। अ का उच्चारण हमेशा स्टमक में आएगा, उ का उच्चारण चेस्ट पे आएगा और म का उच्चारण माथे पे यानी कि थर्ड आई पे आता है। तो वाइब्रेशन लिटरली महसूस होती है, ठीक है। तो हम ओम का उच्चारण करेंगे, अगर आप उच्चारण कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो साउंड पे ध्यान लगा, उस साउंड को अंदर महसूस करना और उसी के साथ रिलैक्स करने की कोशिश करना। बाहर माइंड में क्या चल रहा है, फ्रेंड में कहा, कैंटीन में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, एग्जाम कैसा गया, नॉट टू वरी, रिलैक्स। अभी जो हो प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं,
Relax yourself. Eyes closed. Deep inhale.
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು क्यों माताड़े ध्यान सांसों पे, eyes open नहीं करेंगे. कांतियों नोड़दियರು Relax yourself. ಯಾಕೆ relaxation Deep inhale and exhale. दोनों हाथ जोड़ेंगे. Rub your both hands. Gently touch on your eyes. And slowly open your eyes. Perfect. Thank you so much. Hope vibrations महसूस हुई होंगी. इतनी जल्दी कहना फर्स्ट टाइम के अंदर आई थिंक सो इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर यू गाइस कि उसको महसूस करना भी ये धीरे 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 ग्रेजुअली होता है. एटमॉस्फेयर मैटर करता है, एनवायरनमेंट मैटर करता है. मगर आपने अटेम्प्ट किया, जाना कि मेडिटेशन कैसे की जा सकती है. इट रियली इजी बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो. अभी जो हमने हाथ रब किए थे आई थिंक सो ये इसको जरूर जानना चाहिए. आप लैपटॉप देखते हुए जब ज्यादा थक जाए, मोबाइल स्क्रीन देखते हुए थक जाए, पढ़ाई करते हुए थक जाए, रब योर हैंड्स बहुत तेजी से और अपने पाम, फिंगर्स नहीं, ये पाम का जो नीचे का हिस्सा है इसको आइज पे टच करना है. हमारे आइज के अंदर जो भी ये बैलेंस करने में हेल्प करता है, हीट जनरेट करता है. यहाँ पे वो हीट यहाँ पे आइज की मसल्स को मसाज करता है, तो हमारे आई साइड वीक होने में हेल्प नहीं होने देता, आइज को रिलैक्स करता है. आप कभी भी कर सकते हो इसको, ठीक है. इट्स अ वेरी कंफर्टेबल एंड इजी एक्सरसाइज फॉर आइज. ठंडे पानी से धो ही सकते हो कभी भी, ठीक है ना. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर एफर्ट्स. आप लोग आए. अगर आपके स्क्रीन ऑन होते तो आई मस्ट बी कि मैं ज्यादा एंजॉय कर पाती आपको देख करके. होप यू गाइज एंजॉय फर्स्ट. आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक है. एंड एनी क्वेश्चंस, एनी फीडबैक्स, कुछ भी हो प्लीज डू लेट अस नो. आप प्रीति मैम के साथ शेयर कर सकते हैं. आपको कुछ और जानना हो या कुछ बताना हो या कुछ पूछना हो, आप उनसे बोल दीजिए. आई विल कन्वे माई मैसेज टू यू. आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं जरूर करूंगी. एंड we are from Bria team and I'll hand it over this session to Karishma back for we have a annual tie-up with you guys. So हम पूरे साल आपका ध्यान कैसे रखेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे एक्सरसाइजेस के लिए, छोटी छोटी एक्टिविटीज के साथ, कि आप हेल्दी भी रह सकें, इंजॉय भी कर सकें और हेल्थ फन लगे, ठीक है. सो थैंक यू सो मच. प्लीज टेक केयर ऑफ करिश्मा. Thank you, Meeta. Thank you so much for that truly calming and insightful session. Thank you once again. And to all the students who joined us today, thank you for your participation. And on behalf of Bria and the IEMS Institute, we hope today's session inspired you to start a own wellness routine. And before we wrap up this session, I want Meeta to Meeta or Dr. Virana, whoever wants to share the module with the students that we're gonna Yes. perform for 1 year program. Dr. Yes, Virana. ma'am. Yes, ma'am. We have received that schedule. We'll share with our students and we'll follow up the schedule, ma'am. Okay. So do you want us to show here, or you want you will share with your student? Yeah, we'll share that. We'll share that. Okay, then thank you once again, Dr. Virana, Dr. Preeti, Meeta, Ali Bhaskar, and Jigisha Bhatt. Thank you again, everyone. Thank you. And namaste and have a wonderful day ahead. Thank you.